Hello and welcome back to your channel मेरे दोस्तों. So today we are going to see the parts number 17 of what course. Exactly, the course name is what. So let's begin. अब तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस देखे. नाउ टुडे वी आर सीइंग द 81 नंबर क्वेश्चन. बट अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कोर्स में जुड़ जाए मेरे साथ में. तो चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन. सो व्हाट इज अ क्वेश्चन? What is a discount allowed? Exactly. Discount allowed होता क्या है? So see the answer here. Discount allowed is the discount which you give your customer while he is purchasing something from you. Discount allowed is our expenses. Exactly my dear friends. जब हम discount allowed कर रहे हैं, discount दे रहे हैं, तो अगर discount मेरे हाथ से जा रहा है तो that is our expenses. So that's why this is the discount allowed which is our expenses while the timing of your selling. Exactly, the discount allowed is the discount which you give your customer. तो ये हम किसको दे रहे हैं? हमारे कस्टमर को दे रहे हैं. कब दे रहे हैं? जब वो कुछ हमसे बाय कर रहा है. When the timing of he purchasing something from you, that time you give him a discount which is a discount allowed, and this is our expenses. Let's see the 82 number question. So what is the question? Question is, what is a discount received? Okay, discount received is our income. Discount received is the discount received from entrepreneur while we buy something. Okay, entrepreneur while we buy something. If we are going to buy something, that time the entrepreneur gives us a discount. This is our discount received, and this is our income. That's why this is discount received is our income, and discount allowed is what? Discount allowed is our expenses. So that is the reason between, or that is the difference between discount received and discount allowed. Let's see the 83 number question. I am not going to explain these questions because of these questions are so easy and not to be the difficult while to the understanding. Let's see the 83 number question. How to calculate net profit? जी हाँ, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ. जी हाँ, मैं तो भाई पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेरे दोस्तों. तो चलिए देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन. Net profit is the residual income left with the company after all deductions. जी. Net profit is also referred as a earning after tax, and it is show in the bottom line of income statement. Net profit is the surplus into the bracket positive value remained with the company after deducting all expenses, interest and taxes. Then we get operating profit. Then interest on long-term debt and taxes are deducted from its, with which a result is net profit. Our operating profit minus into the bracket interest and taxes is, bracket should be complete, is equal to net profit. जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि मैंने वहां पर बताया आप लोगों को नेट प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट ये होता है. क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द रेसिडुअल इनकम लेफ्ट विद द कंपनी आफ्टर डिडक्शन. जी हाँ, डिडक्शंस को हटाने के बाद में. बट कौन से डिडक्शंस वो भी मैंने आप लोगों को बताया. यहाँ पर देखिए, मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको भी और मुझे भी समझ में आ जाए. नेट प्रॉफिट इज द रेसिडुअल इनकम. जी हाँ, ये रेसिडुअल इनकम है. इनकम लेफ्ट विद द कंपनी. लेफ्ट मतलब माइनस करके, घटा करके, डिडक्शन करके. क्या? विद द कंपनी आफ्टर ऑल डिडक्शंस. जो भी पॉसिबल डिडक्शंस है उन सबको घटा करके हमारे पास में लेफ्ट में जो बैलेंस बचेगी वो होगी हमारी नेट प्रॉफिट अमाउंट. नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो रेफर एज अर्निंग आफ्टर टैक्स. जी हाँ, इसको और क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड इट शो. और ये चीज कहाँ पर शो की जाती है? इट शो इन दी बॉटम लाइन ऑफ इनकम स्टेटमेंट. जी हाँ, बॉटम लाइन पर ये इनकम स्टेटमेंट हम लोग हमेशा से शो करते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट कौन सी वाली इनकम स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट शो करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं और लोगों को बता पाऊँ और मैं भी जान जाऊँ. जी हाँ,
नेट प्रॉफिट इज द सरप्लस. नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज अ surplus balance which is a positive value remain with the company after deducting all expenses, interests and tax. बट वो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब हम लोग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस कर देंगे, तब हमारी वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. दिस इज आवर सरप्लस एंड दिस सरप्लस एंड दिस पॉजिटिव वैल्यू वी कॉल्ड अ नेट प्रॉफिट. देन वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखिए, net profit is the surplus positive value remain with the company after deducting all expenses, interest and taxes. Then we get operating profit. Then interest on long term debt and taxes are deducted from it, which is a result of net profit. जी हाँ, ये सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्सेस घटाने के बाद में भी हम लोग के पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाता है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर हम लोग इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट और टैक्सेस को घटा दें, डिडक्ट कर दे, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट. और इसी को अगर फॉर्मूले में अगर यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं तो कह सकते हैं नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस into the bracket interest and taxes. So this is the net profit calculation. Let's see the number 84 question. What is a net loss? अगर अब तक लाइक नहीं किया तो एक सिंपल सा लाइक कर दीजिए. चलिए, net loss is deficit or a negative position of the business and it is also showing bottom line of the profit and loss account statement. In a simple words, if operating expenses is more than operating इनकम वी गेट नेट लॉस. जी हाँ दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहे तो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज मोर देन ऑपरेटिंग इनकम. जी, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम से ज़्यादा हो गए, मतलब अगर यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके ले लेते हैं. अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, देखिए ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के दो साइड होते हैं. एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट. जी हाँ, P&L अकाउंट, जिसी को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. कुछ लोगों ने कमेंट की होगी, सर इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो इज नोन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट ऑल्सो. तो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर क्या जी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं? ये साइड में आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग इनकम कहाँ पर आ जाती है? वो आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर. जी हाँ, अगर इस चीज पर, मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर जो बताया गया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज मोर देन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब इससे अगर ये, मतलब एक से ज्यादा दो है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया लॉस. जी हाँ, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया लॉस, और यही लॉस को हम कहते हैं नेट लॉस. जी, सो नेट लॉस इज अ डेफिसिट और अ नेगेटिव पोजीशन. और ये क्या होती है? ये नेगेटिव पोजीशन होती है, और इसी को हम डेफिसिट भी कहते हैं. डेफिसिट और अ नेगेटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द बॉटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इसी को हम कहाँ पर शो करते हैं? यहाँ पर. बॉटम बोले तो क्या? तो बॉटम बोले तो ये चीज, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे टैली करते हैं कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर ठीक से मुझे राइटिंग नहीं आ रही, बट आप समझ पाओगे. तो ये चीज जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बॉटम. तो ये बॉटम में, मैं जरा माउस का कर्सर ले लूं. जी, ये जो चीज है यहाँ पर बोलेंगे बॉटम. सो बॉटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट. तो दिस इज अ नेट लॉस. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी. चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज अ कमीशन? जनरली कमीशन क्या होता है कि हम लोग या फिर ब्रोकर कमीशन लेता है. ब्रोकर, हम लोग उसको देते हैं कमीशन. बट अगर अकाउंटिंग में देखें तो कमीशन क्या होता है? लेट्स सी द डेफिनेशन और स्टेटमेंट. द फीस पेड टू अ ब्रोकर टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड based on a number of the shares, bonds, options and oblique or their rupees value in India. जी हाँ दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है? कमीशन एक फीस होती है. कमीशन क्या होता है? कमीशन एक फीस होती है जो पेड की जाती है ब्रोकर को. किसके संदर्भ में? एग्जीक्यूट करने के संदर्भ में. किस चीज के बारे में? ट्रेड करने के संदर्भ में. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स उसने बेचे, कितने शेयर्स उसने कमाए, सेल किए, अर्न किए, वॉट. तो उन सभी के आधार पर हम लोग उसको जो फीस देते हैं,
देखिए यहाँ पर बॉन्ड्स है, ऑप्शंस है, ये सभी चीज़ें आ जाती है। इसके माध्यम से वो जो फीस कलेक्ट करता है, वो जो फीस कमाता है, वो जो ब्रोकर का जो मुनाफा होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं कमीशन। और ये मुनाफा अगर हमारे इंडिया में देखें, भारत में देखें आपने, तो ये इंडियन रुपीज में होना चाहिए। दैट शुड बी कॉल्ड अ कमीशन। जी हाँ दोस्तों। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा? तो व्हाट इज अ डिस्काउंट अलाउड, what is a discount received, what is a net profit and how it's calculated. Number 4, what is net loss. Number 5, what is a commission. दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स जरूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।